Welcome back to the next session of crop protection management, and now we will discuss about seed storage and seed store protection. Okay, as I told you in the very beginning that we are here running this channel for you to get the education in this lockdown period. Yet if you have not subscribed our channel, please subscribe it and press the bell icon so that you will get all subjects videos to a single notification. ठीक है? Come back. Now next one is seed storage. After harvesting, see, if the crop is being cultivated from the economical profit, then it is in very large quantity, bulk quantity. That time it is not like that. As soon as you have harvested, you will sell it out into the market. Practically कैसे होता है कि कोई भी crop harvest करने के बाद, we are talking mainly about seeds and grains, not about fruits and vegetables. Seeds and grains we have to keep store because it is been harvested only once. साल में एक बार ही उनका हार्वेस्टिंग होता है, लेकिन पूरे साल तक उनको यूज करना होता है, इसलिए उनका स्टोरेज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो स्टोरेज कहाँ कहाँ पे किया जाता है? स्टोरेज इज डन ऑन द 3 लेवल. फर्स्ट, एट प्रोड्यूसर लेवल. प्रोड्यूसर या आप उसको रूरल बोल सकते हैं. जैसे फार्मर, when the farmer is harvesting the grain or the seeds, he is storing at his own place, right? Second is your traders. From the farmers, these traders are purchasing the grains on large quantity and they are storing on their level. So when they will get the appropriate value, और suppose market में, for example, I have 100 क्विंटल of wheat, मेरे पास 100 क्विंटल wheat है और मार्केट में अभी वैल्यू कम है, तो what I will do, मैं वेट करूंगी कब की गेहूं का भाव कब बढ़ रहा है मार्केट में, फिर उसकी जो मार्केट प्राइस है उसका जो वैल्यू जो फ्लक्चुएट होती रहती है, till that time I will wait. As soon as I will get good cost कि मार्केट में अभी गेहूं का भाव बढ़ रहा है, ठीक है, at that time what I will do, I will sell it. ठीक है. And third one is FCI. FCI. What it is? It is the Food Corporation of India. It is stored under the control of government. ये जो FCI है, ये लोकल फार्मर से या ट्रेडर से ग्रेन सीड्स परचेस करके बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में स्टोर करके रखते हैं. आपने कभी सोचा है, हमें जो राशन दुकान पे जो राशन मिलता है, बाय शोइंग दैट रेशन कार्ड, फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग दैट? आर दे परचेसिंग फ्रॉम फार्मर्स? आर दे दैट राशन शॉप होल्डर? नो, इट इज बीन प्रोवाइडेड बाय द government. And how the government is able to provide it throughout the year? They are providing it because they have already stored it on the large quantity. That's why this third FCI, it is the big storage of the food grain. Now when we are storing the food grain, that time they are getting affected. How they are getting affected? Either seed or grain, by different ways. They are divided into 2 factors. Okay, seeds or grains. They are divided into 2 factors. First आपका है, चलो पहले बायोटिक की बात करते हैं. बायोटिक फैक्टर्स और दूसरा होता है आपका एबायोटिक फैक्टर्स. ओके, सो इन बायोटिक फैक्टर, बायोटिक एंड एबायोटिक यू नो वेरी वेल, दीज आर द कंपोनेंट्स विच अफेक्ट पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली ऑन द होल लिविंग वर्ल्ड. अभी बायोटिक फैक्टर में क्या क्या आता है? सारे जो इंसेक्ट्स है, देखो इसके पहले वाले सेशन में हमने
क्रॉप के बारे में बात की थी, हम बात कर रहे हैं अभी प्रोटेक्शन के। सो सारे जो इंसेक्ट्स है, सारे एफिड्स है, देन देर आर बर्ड्स लाइक क्रो होता है, पिजन होता है, बैंडिकॉट होता है, देन स्पैरोज अप टू सम एक्सटेंट दे आर देयर, देन रैट्स आर देयर, माइस आर देयर, फंगस इज देयर, बैक्टीरिया इज देयर। ये जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके अलावा और भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनकी वजह से हमारे स्टोर्ड सीड्स को या ग्रेन्स को नुकसान हो रहा है, ऑल दे आर कम इनटू द बायोटिक factor. Now which are the abiotic factor? In that you have first temperature. Okay, temperature is very important factor of affecting the seeds. See, हमें हमारा क्रॉप ज्यादा समय तक, ज्यादा देर तक, महीनों तक स्टोर करके रखना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वी शुड नो द प्रॉपर हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ इट। उसका प्रॉपर हार्वेस्टिंग टाइम हमें पता होना चाहिए, एंड वी हैव टू हार्वेस्ट एट दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है कि जब हम स्टोर करते हैं तो उस टाइम क्रॉप, हमारे ग्रेन्स का, सीड्स का टेम्परेचर क्या है वो उसकी ड्यूरेबिलिटी पे असर करता है। कैसे? जनरली ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो 30 से 32 डिग्री तक ही ज्यादा ग्रो या मल्टीप्लाई होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सबकी बात कर रही हूँ मैं, फंगस की बात कर रही हूँ, बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ, वायरस का थोड़ा सा कम है, लेकिन फंगस इन्फेक्शन इज मोर, ठीक है। बट व्हेन टेम्परेचर इज राइजेस, that time it may goes to up to 40 to 45 लेवल, और उस टाइम में मतलब 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उनकी जो मेटाबॉलिज्म है, उनकी जो एंजाइम्स है, वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, राइट। ज्यादा एक्टिव होने का दूसरा मतलब ये है दैट दे ग्रोज इन नंबर, एंड एज दे ग्रोज इन नंबर, दैट टाइम दे कॉज मोर एंड मोर harm to our stored material. That's why it is very necessary to store our grain below the temperature of 30 degrees Celsius so that we can store it for longer period of time. ठीक है? The second abiotic factor is moisture. Moisture is very important. See, the amount of water contained into the weight of that particular seed is called as moisture. It is approximately, मतलब अगर आपको लॉन्ग पीरियड तक स्टोर करना है तो 14 जो है यूनिट, वो या उससे कम होना चाहिए, 14% ऑफ द वेट और लेस। अगर आपकी सीड का वेट 1 ग्राम है तो इट्स मॉइस्चर कंटेंट शुड बी 14% और लेस देन दैट ऑफ 1 ग्राम। क्यों? क्योंकि इफ मॉइस्चर इज देयर, दैट टाइम व्हाट हैपन, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोज इन लार्ज क्वांटिटी बिकॉज in moist condition it is easy for them to either to chew that grain or to suck or to bore that stored grains. इसकी वजह से क्या होता है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो भी इंसेक्ट पेस्ट है जो हमारे स्टोर्ड ग्रेन में है वो बढ़ जाते हैं तो दे ऑल्सो अंडरगोज रेस्पिरेशन, isn't it? They undergoes respiration, and when the organism undergoes respiration that release the heat, ठीक है, वो हीट रिलीज करते हैं, और जब वो हीट रिलीज करते हैं तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है, फिर उनकी मेटाबॉलिज्म और उनकी एंजाइम एक्टिविटी एनहांस हो जाती है, बढ़ती है। उसकी वजह से फिर से क्या होता है, नंबर ऑफ इन्फेक्टिंग एजेंट्स आर इंक्रीजिंग, हमारे स्टोर्ड ग्रेन्स को हार्म पहुंचाने वाले ऑर्गेनिज्म की काउंट, उनकी संख्या, उनकी अमाउंट बढ़ जाती है। इसीलिए इट्स वेरी नेसेसरी टू चेक द मॉइस्चर ऑफ दैट हार्वेस्टेड ग्रेन बिफोर यू गो फॉर द स्टोरेज, ठीक है।
अभी हम स्टोर कहाँ पे करते हैं उसके ऊपर भी ये डिपेंड होता है, दैट आई विल टेल यू लेटर. देन द लास्ट अबायोटिक फैक्टर इज ह्यूमिडिटी. Okay, what humidity is? The amount of water vapor present into the air, that is called as humidity. One thing I'll tell you about this. When the moisture increases, and that time because of respiration of those organisms, when the temperature increases, that is called as dry heating of grains. Dry heating. क्यों dry heating? क्योंकि रेस्पिरेशन में से जो हीट रिलीज हो रही है उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ड्राई हीटिंग ऑफ द ग्रेन. नाउ व्हेन इन केस ऑफ ह्यूमिडिटी व्हाट हैपेंस, द water content increases in the atmosphere and that also leads to growth of the fungus more and more. And that also leads to the rise in temperature. मतलब आपकी ह्यूमिडिटी अगर 14 से 15% तक बढ़ जाती है तो कम से कम 60 to 66 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है. एंड दैट इज रेफर एज द वेट हीटिंग ऑफ द ग्रेन. इसे क्या बोलते हैं? वेट हीटिंग ऑफ ग्रेन्स. In both the cases, dry heating and wet heating, what happens? The ultimate loss of the crop takes place. Seeds takes place. क्योंकि हमारे सीड्स है जो हमारे क्रॉप से आए हुए हैं उनको हम अच्छे से स्टोर कर नहीं पा रहे हैं. Wherever you are, that doesn't matter where you are storing your grains and seeds. It may be in the stack of gunny bags. वो पता है ना आपको gunny bag जिसमें हम स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, वो स्टैक में है या फिर वो आप ग्रैनरीज या सिलोज में स्टोर कर रहे हो. ग्रैनरीज एंड सिलोज क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर के सेकंड लास्ट पेज पे है. देखो ग्रैनरीज क्या होती है या फिर सिलोज क्या होती है. भले आप उसमें स्टोर कर रहे हो या गनी बैग्स में स्टोर कर रहे हो, इन बोथ द केसेस ऑल दीज अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स plays very crucial role to damage our stored seeds. Okay, now how can we avoid all this? How can we protect our seed when it is in protection? That I will tell you after some time. Okay, till that time you just go through it and find out what else we can do to keep our seeds protected. Thank you.